BTech Mechanical final year engineering student. These are my friends. Om Shankar Sharma from Mechanical Engineering final year engineering student. Shivam Kumar Electrical Engineering student final year student. Amarjit Kumar Electronics and Communication final year. So we are here to discuss a seminar on healthcare, healthcare and entrepreneurship. So the themes for the topic would be healthcare revolution, importance of entrepreneurship, challenges in startup ecosystem, solutions to tackle them, opportunity for the students. So first of all, what is healthcare? Healthcare is on a mission to create easy, accessible, connected, decentralized, aggregated ecosystem for all sorts of healthcare and emergency needs of the people of rural India and the world by setting up a chain of dedicated local ordnance and ordnance point and synchronizing them with the nearest medical aid cities. I will make it easy for you. हेल्थकेयर एक एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे किसी भी तरह की हेल्थ केयर या इमरजेंसी से रिलेटेड सेवाएं हो वो सीमलेसली लोगों तक पहुँचाई जा सके। ये चीज़ें बड़े शहरों में फॉरेन में आसानी से हो जाती है, लेकिन बिहार जैसे छोटे स्टेट में और पूर्णिया जैसे छोटे शहरों में, गांव में अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। और हेल्थ केयर के पास सपोर्ट है स्टार्टअप इंडिया का DPIIT रिकॉग्निशन फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, and we are also part of Microsoft for Startups. We have support from Lemon Ideas, Lemon School of Entrepreneurship, Bharwani Foundation. Bhava Group is a subsidiary of our parent company, Bhava Healthcare Private Limited. And we have also support from Pune College of Engineering. Thank you for being that, sir. We have advisors from IFBIC, which is Amresh Kumar Singh, the president of IFBIC, Sanjay Kumar Agarwal, the eminent investors from IFBIC. We are also a fellow from Zata Fellowship, and we have tech partner Founder Code Technologies, a Lucknow-based IT firm. So we need to understand what is the problem and why we started healthcare. Majority of the population resides in rural areas. If we talk about numbers, 73% of the people resides in rural area and only 27% resides in metropolitan. But irrespective of that, if we talk about healthcare infrastructure, 75% healthcare infrastructures are in cities, and only 25% of the healthcare infrastructure in rural areas. And in that also, only 11% of sub-centers, 13% of PSCs, and 16% of CSCs are upon the parameters of IPSS, Indian Public Health Standards. So what is the solution? Healthcare is creating ordnance point in rural areas. Ordnance point are of different types. We are also collaborating with Government of Bihar Health Department, where we are utilizing and transforming PSC, CSC sub-centers. We are also creating our dedicated ordnance point. We are also transforming local medical retail shop into our ordnance point. And we onboard healthcare professional service providers and relevant stakeholders to our platforms, and we synchronize them to the ordnance point created in rural areas or anywhere else in the other needed areas. And the first phase would include doctors, where we will be giving doctor appointments, doctor consultations, medicines. Before you judge us too quickly, because some of the people will think that there are already many giants in the market like Netmeds, Pharmacy, who are doing the same thing. I will make it clear and differentiate you what they are doing and what USP we have, unique selling proposition what we have. Those companies deliver medicines from warehouse system which are located far away in metropolitan areas. If we book medicines from Purnia, that medicine available in Purnia, or maybe if it is not available in Purnia, it would be definitely available in
Patna. But if we book medicine through them, they will deliver us from Kolkata, Haryana, Maharashtra, making it costlier, time consuming. If we synchronize them and we link the wholesalers or the service providers, medicine providers in Bihar itself, the medicines would become cheaper and it would take lesser time than any other companies. So that's the medicine USP. And for Path Lab, in first phase we are just delivering reports. Then in second phase of Path Lab, we are collaborating with Nirogyan, which is a company, startup-based company located in Bangalore, where we will be comprehensing our services through them, and after that we will set up our own. And the fourth service which we are offering is ambulance, for which we are collaborating with Government of Bihar also through PPP, Public-Private Partnership. They have collaborated with Samman Foundation. We are collaborating with Samman Foundation. Through that collaboration, we will be able to deliver zero cost ambulances to the needy people. We are also collaborating with other ambulance providers which would be marginal to get commissions to our company. This is the first phase of our services. It is just the base setup phase. Don't judge us too quickly that this is just a doctor appointment or medicine delivery or Path Lab support or ambulance services company. It is the base setup phase, and after post base setup phase, we are collaborating with Evercare group, which is set up in which is delivering services in USA, Middle East and Africa. We are collaborating with them to create e-clinic setup, IoTs, kiosk for rural standards at subscription basis. It would be in phase 3. Now we will go into workflow section. How does the company work? In every state, there are certain prime medical aid cities. If we talk about Pune itself, it caters patients around per day 80,000 to 1 lakh per day patients, which comes from nearby districts, around 4 to 5 districts. And there are several such, apart from the capital Patna, there are several such prime medical aid cities, which is Muzaffarpur, Darbhanga, Purnia, Bhagalpur, Begusrai, Nalanda, Gaya. If we synchronize those prime medical aid cities, we would be able to serve patients, or we can say allied district patients of approx 4 to 5 districts. If we onboard 5 those prime medical aid cities, we would be altogether catering around 18 to 20 districts. So we are onboarding our medical providers, service providers, professionals, stakeholders from those prime medical aid cities. And what's the synchronization part? We are creating ordnance point in rural areas, which would be initially it would be at block level, then we would be using it or leveraging it to set up at panchayat level as well, and we would be synchronizing them with the prime medical aid cities. Here you can see Purnia East, where we are particularly right now. Line Bazar is the prime medical hub, as you all know that. We would be synchronizing those points with those ordnance points. Ordnance and ordnance point. Ordnance could be anyone. It could be you as well. Ordnance is basically किसी को अगर किसी भी तरह का जरूरत है, मदद है, if you can do that, you are an ordnance. इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है. We will give a cut of our commission to you. And for ordnance point, we are creating dedicated ordnance point, which will be our prima forma, and we are onboarding local licensed medicine store. Why we are onboarding local licensed medicine store? Because it is the first point of interaction for medical visit
Whenever a patient gets ill, anyone gets ill, they reach out to their medical store for medical assistance. And if we onboard them, and if we give them proper resources, they will give them the better services, or we can say metropolitan standard services at the very step of their home. We are, as I said in the earlier instance, we are in talk with the government of Bihar. Our proposal has been forwarded from government of CMO office to health department, where we will be onboarding and renovating PSC CSC सब सेंटर्स, सदर अस्पताल, सिंपल भाषा में कहूँ गाँव के जो होते हैं सदर अस्पताल या छोटे सदर अस्पताल ब्लॉक लेवल, उनको हम लोग जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ये सारी सर्विसेज दी जा सकें। अभी सिमिलर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पे भी हो रही हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव नहीं होने का कारण है पॉलिटिकल डायमेंशन एज वेल। तो वी वुड यूज़ इट, जो गैप यहाँ क्रिएट हुआ है, जो लूप होल्स हैं, उनको हम लोग जो है फिल आउट करने के लिए PSC CSCs को यूज़ करेंगे और एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। और ऑर्डिनेंस पॉइंट क्या है कि कोई भी ऑर्डिनेंस अगर है, किसी को नीड है, तो उसको आप मदद करके एक अपना ऑर्डिनेंस, अगर आपके पास पेशेंट्स आ रहा है तो कंपनी विल प्रोवाइड यू विद सेटअप एंड एवरीथिंग टू क्रिएट ऑर्डिनेंस पॉइंट देयर। We have also started an initiative called Help to Earn. In a world where no one helps no one without any profit, we have started an initiative called Help to Earn. Help to Earn is an initiative where the patients can help anyone, and in return they will get commissions. It doesn't mean that if you don't help someone, if you do avail any services on your own for yourself, then there also you are helping yourself. Then there as well we will give you commissions and rebates, rewards, cashbacks, everything. This is the portfolio and the ecosystem what we are creating through S2E. This is the team. We started this startup in the prima phase. When we started, it was not a healthcare startup. We started जब प्रियंका रेप केस हुआ था हैदराबाद में, हमारा प्राइम मोटिव था कि हम लोग जो है वुमेन इमरजेंसी स्टार्टअप क्रिएट करें या प्रोडक्ट क्रिएट करें। उसको लेकर के हमारा डिज़ाइन IIT गुवाहाटी गया हुआ है, जो कि चीपर कॉस्ट पे जो है अवेलेबल SOS बेसिस इक्विपमेंट होगा। अगर इमरजेंसी और हेल्थ केयर को क्यों हमने जोड़ा, किसी के माइंड में अगर आ रहा होगा हेल्थ केयर को क्यों, जब वुमेन बना रहे थे तो फिर हेल्थ केयर क्यों है? हेल्थ केयर इमरजेंसी इज सिमिलर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ पर्सनल इमरजेंसी, बोथ वर्क ऑन SOS basis, where anyone in emergency situation needs immediate support. So we linked healthcare and emergency, and to make it effective, whenever such women incident or any sort of other case occurs, there are several companies come with the product in the market and they say we will cure that, we will cure this and that, but it doesn't happen. ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रोडक्ट जो है इफेक्टिव नहीं है। लॉन्ग टर्म में कोई भी आपके मोबाइल में अगर स्पेस बढ़ता है, गेम अगर आप खेल रहे हो तो गेम कुछ दिन बाद स्पेस जब मोबाइल लैग करने लगे आप हटा दोगे। इट्स दैट सिंपल। तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए और भी चीज़ें जोड़ना होता है। तो हम लोग हेल्थ केयर को जो एज ए बेस बना रहे हैं ताकि जो सारी चीज़ें हैं उनको हम लोग जोड़ सकें। हमने IIT बॉम्बे में भी प्रेजेंट किया था, जिसमें हमारा स्टार्टअप कैटेगरी वाइज 4th रैंक था, और ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन जो है 30,000 प्लस आए थे। रिकॉग्निशन स्टार्टअप बिहार का भी है। इनोप्रेनर्स में 17 प्लस कंट्रीज से एप्लीकेशन आए थे। एट दैट टाइम वी वर फ्लैट जस्ट एट आइडिया स्टेज, और उस टाइम हम जो है टॉप 25 में हम लोग थे। स्टार्टअप फेलोशिप हमारे पास था। यूरेका के थ्रू ही हम IFBIC से मिले थे, जो हमारे एडवाइजिंग पार्टनर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो है फॉर फाउंडर्स हब होता है, उसके थ्रू हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एसोसिएट पार्टनर्स हैं। बागवानी फाउंडेशन के भी एसोसिएट पार्टनर्स हैं, दे वी हैव सपोर्ट फ्रॉम देम। दैट्स इट about the HealthCat, what HealthCat is building, what HealthCat is doing in the market, what was the problem statement, and what is the solution
of catching those problems. Now we will talk about entrepreneurship. What is entrepreneurship? Before we get into what is entrepreneurship, we need to understand who are entrepreneurs. Entrepreneurs are those who identifies the problems. If you identify any sort of problems, you are also an entrepreneur. But to be a fully fledged entrepreneur, you need to develop other sort of things. What do you do with the problems? If you are passionate to solve that problem or not. If you don't have passion to solve that problem or anything that, then you are not an entrepreneur. समस्या तो हर किसी को दिख जाता है, समाधान करने की ललक है या नहीं वो मायने रखता है। और समाधान करने की अगर ललक है तो समाधान क्रिएट भी तो करना होगा। उसके लिए कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, रिसर्च करना होगा। हमें 2 साल का टाइम लगा था। कोविड के टाइम में हमने जो है सेवरल NGOs के साथ में हमने वर्क करा था, रूट लेवल पे हमने जाकर के वर्क करा था। तब जाकर के हमें पता चला कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लूप होल्स है, कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। जब आपके पास समाधान भी आ जाएगा, उसके बाद भी एक चीज़ है जो आपको पुट डाउन करेगा, वो है इफ़ यू आर अ रिस्क टेकर और नॉट। घर वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले क्या करेंगे, मन में जो राजनीति है उसे हमें हटाना होगा। बीटेक के बाद ऐसे में प्लेसमेंट लेना होता है हर किसी को। प्लेसमेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, आप जो एंटरप्रेन्योर है जिसके पास वो विजन है या दे हैव सम सॉर्ट ऑफ विजन मिशन, यू कैन कोलैबोरेट विद देम। At least you will understand what startup is all about, how does a startup work, and you will gain knowledge which you can use in the upcoming phase of your careers. Why entrepreneurship is important? As I said, it gives you self-employment. जिसके लिए सब वर्क कर रहे हैं, अगर खुद ही एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे तो फिर लोगों के लिए कैसे वर्क करेंगे? सेकेंड इज कैपिटल फॉर्मेशन, बिना मनी का तो कुछ नहीं होगा। थर्ड इज क्रिएट मार्केट स्टेबिलिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। if there is some sort of demand, you need to fulfill the supply. If you create that stability, then only you can become an entrepreneur, or you can create a startup around it. Then there is economic development. Entrepreneur create economic development. If we talk about from 2014 to 2022 market reports, startups alone has given 7 million jobs in short duration of time, created 7 million of startups and jobs around it. Whereas the contemporary companies hasn't fulfilled that. Other is change agent. The socio-economic problems, if you are fulfilling every sort of problems, if there is some sort of problems in the market, and if it is not being solved, and if you are solving that, then you are creating or act as a change agent, and you are also creating job creation. अगर हेल्थ केयर ने ये सेटअप करा है तो उसे भी वो अकेले नहीं कर सकता है, उसे सर्विस सपोर्ट चाहिए। किसका? प्रॉपर टीम का। प्रॉपर टीम कहाँ से आएगी? इफ़ वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, भी कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले इंजीनियरिंग अपने कॉलेज में ही जाएंगे, अपने सराउंडिंग जाएंगे, इंजीनियरिंग जो हमारी कम्युनिटी है उनके पास जाएंगे, उसके बाद ही कहीं और जाएंगे। चैलेंजेस, देयर आर मैनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर मैं अपनी ही बात करूं, जब हम स्टार्टअप लेकर के जब शुरुआत किए थे तो हमें शुरुआत में था कि रिसोर्सेज मिल नहीं रही थी। रिसोर्सेज के लिए किसके पास जाए? रिसोर्सेज के लिए हम एमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कि बिहार के ही टॉप पोजीशन पे हैं, उनके पास हम गए। उनसे कहा कि सर वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ विजन एंड मिशन टू डू, एंड दे सेड वी आर गेटिंग पेड, यू डू और नॉट, व्हाट वी विल डू। आप करो या नहीं करो, मुझे तो पैसा मिल ही रहा है। एक ने कहा बिहारी बिहार में कुछ नहीं कर सकता है, बिहारी बिहार में कुछ नहीं कर सकता है। डू यू नो अनिल अग्रवाल, द फाउंडर ऑफ वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज, इज फ्रॉम बिहार। जिनको भी स्टार्टअप का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो योर स्टोरी के बारे में जानते होंगे। who features the change makers in their magazine, or they are eminent
मीडिया पर्सन्स, उनकी भी फाउंडर यही की है। TVF तो हर कोई देख रहे होंगे, यूट्यूब के फेमस हैं। अरुणव कुमार, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बिहार। बिहारी बिहार में नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि बिहार में जो स्टार्टअप का कल्चर है वो नहीं है अभी तक। 2014 से 17 के अराउंड में स्टार्टअप बूम आया था इंडिया में, जिस टाइम में आपका सिलिकॉन वैली, इंडिया का जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, वहाँ सेटअप हुआ था स्टार्टअप। बहुत सारे स्टार्टअप उस टाइम में आए थे, पेटीएम, जोमेटो, वो उसी टाइम के स्टार्टअप्स हैं। बिहार अभी भी वो स्टार्टअप बूम लैग कर रहा है, और आने वाले 1 से 2 साल में स्टार्टअप होंगे। अभी जैसे DST, गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी उसमें वर्क कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे कॉलेज में स्टार्टअप सेल भी बना है, और हर कॉलेज में बन रहा है स्टार्टअप सेल। और जो कुछ स्टार्टअप्स हैं वो भी मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो बिहार में स्टार्टअप की ज़रूरत है। जॉब, बिहारी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाऊँ, तो वो उनको सर्विसेज नहीं मिल पाती, रिसोर्सेज नहीं मिल पाती, कनेक्शन नहीं मिल पाते, नेटवर्किंग नहीं मिल पाती, मेंटोरिंग नहीं मिल पाती है। तो उन चीज़ों को जो है ठीक किया जा रहा है, और अगर गवर्नमेंट वर्क कर रहा है इस पर, तो अगला स्टार्टअप बूम बिहार में होगा। अगर अगला स्टार्टअप बूम बिहार में होगा तो वो बाद में भी स्टार्टअप बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। बाद में बहुत सारे स्टार्टअप है। अभी जो है इंडिया में 108 यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप यूनिकॉर्न। स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं पता है, दे आर द जायंट्स। इंडिया अलोन हैज़ 108 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स। तो इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री हैज़ बूम्ड एंड बिहार इज वेटिंग फॉर दैट बूम, एंड इट विल अकर इन 1 to 2 years। उसके बाद भी स्टार्टअप आएंगे, लेकिन अगर अभी आपके पास, किसी के पास आइडिया है, तो स्टार्टअप सेल हमारे कॉलेज का भी अच्छा वर्कर अभी शुरू ही हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल, एंड दे विल हेल्प यू। You can be a part of that boom. People will know you. Your startup would be, even if you are not there, your company will be listed forever. Those companies were in the first phase or the startup boom of Bihar. And there are challenges in startup ecosystem definitely. First of all, it is winning customer loyalty. You need to understand your customer market, if they need your solution or not. अब कैसे पता चलेगा, उसको रिसर्च कीजिए, R&D। पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप कहाँ से करें? अगर इंजीनियरिंग का ही बात करूँ, अपने कॉलेज के बहुत सारे बच्चों का लिंक्डइन अकाउंट नहीं है। लिंक्डइन बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोलैबोरेशन के लिए, खुद का प्रेजेंस बनाने के लिए। अगर आपको जॉब भी चाहिए तो उसके लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका नॉलेज नहीं है बहुत स्टूडेंट के पास। तो पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। हमें 3 साल लगा प्रॉपर पार्टनरशिप पाने में। बस पैसे के लिए मत करना, अगर सॉल्यूशन सही कर रहे हो तो पैसे आ ही जाएंगे पीछे से। वी हैव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट फ्रॉम सेवरल इन्वेस्टर्स एंड वी विल डेफिनेटली इन्फोर्स देम इन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। और हाई कंपटीशन है, कभी भी कंपटीशन अगर आप बना ही रहे हैं किसी तरह का स्टार्टअप या कुछ भी, तो वो बस बिहार के लिए नहीं है, इट्स फॉर द वर्ल्ड। तो कंपटीशन हाई है, कॉम्पिटिटर कहाँ लैग कर रहा है। जरूरी नहीं कि जोमेटो अगर पहले ही बना हुआ तो स्विगी कैसे आ गया। जो जोमेटो का लूप होल था, स्विगी ने उसे ही फिल करा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर्स, वेयर दे आर लैकिंग। इफ यू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर्स, you can understand your market very well. Then there is overestimation. अगर आप आँख ही रहे हो तो आपने खुद को ज़्यादा ही आँख लिया है। ओवर कॉन्फिडेंस भी उसको बोलते हैं। तो रियलिटी चेक होना ज़रूरी है। रियलिटी चेक कौन देगा? तो प्रॉपर गाइडेंस देने वाले, मेंटर्स देने वाले, दे नो वेरी वेल फ्रॉम यू। आपको भी वो बहुत अच्छे से जानना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी जानना है, तो वो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे कि क्या कमी है, आप जो एस्टिमेशन कर रहे हो वो सही है या नहीं, है भी या नहीं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर स्टार्टअप है तो फाइनेंसेस होगा ही होगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको नहीं आ रहा है तो यू मे कम इन बिग ट्रबल एट अदर फेज ऑफ टाइम। जब तक आप खुद का अपना प्रॉपर टीम नहीं बना लेते हैं, आप लॉयर हायर कर लोगे, आप जो है CA हायर कर लोगे, लेकिन तब भी आपको नॉलेज चाहिए होगा। आपको नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्सेज
रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। शुरुआती फेज़ में हमें भी रिसोर्सेज नहीं मिली थी। रिसोर्सेज के लिए हमें दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, केरल, सब जगह हमें जाना पड़ा। तो जाना चाहिए, नॉलेज गेन होता है, रिसोर्सेज मिलती हैं। सर्व करने से नहीं होगा, अपने लिए कर रहे हो मेहनत तो खुद रीच आउट करना होगा आपको। राइट स्किल सेट, अगर आप फाउंडर हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्टार्टअप क्या है, किस तरीक़ा से वर्क होता है, चीज़ें कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, मैक्सिमाइज़ किया जाता है। तो हर चीज़ें आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन से लेकर के मैनेजमेंट तक, बिजनेस डेवलपमेंट से लेकर के यूज़र इंगेजमेंट तक, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल के तौर पे जानें, बेसिक नॉलेज भी रिक्वायर्ड है। चैलेंजेस को कैसे ठीक किया जा सकता है, मैं उसी का बात कर रहा था। क्वालिटी टीम होनी चाहिए। मार्केटिंग टीम आपके पास है या नहीं, बिजनेस टीम है या नहीं, यूज़र एंगेजमेंट टीम है या नहीं, कंटेंट क्रिएशन टीम है या नहीं, फाइनेंशियल टीम है या नहीं। अगर वो सारी चीज़ें आप में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको और चाहिए। हो सकता है उनका नज़रिया कुछ और हो। हमारे में अभी भी जो है टेक पार्टनर है, मतलब टेक CTO नहीं है हमारे में। उसके लिए हम फाउंडर को टेक्नोलॉजी लखनऊ के हैं एक IT फर्म, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और हम लोग जल्दी अपना भी CTO ला रहे हैं। उसको लेकर के जो है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद पार्टनरशिप होनी चाहिए, अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए, तभी कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी। R&D इज़ रिक्वायर्ड, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च आप करोगी तभी सही तरीक़ा से आप डेवलप कर पाओगे। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो तो आप डेवलप भी नहीं कर पाओगे। रिसर्च करने के लिए आपको लोअर लेवल तक में जाना होगा। अगर मैं रूरल के लेवल कर रहा हूँ, अगर मैं रूरल एरिया में नहीं जाऊँगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाऊँगा, तो मुझे रूरल एरिया का पता ही नहीं रहेगा कि रूरल एरिया में वर्क कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है। तो वो चीज़ें हैं। शॉर्ट एनालिसिस एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं बिजनेस में। शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस समझने के लिए, टीम का इफेक्टिवनेस समझने के लिए, ऑपरेशन समझने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो स्टार्टअप सेल के थ्रू जो है प्रॉपर क्यूरेटेड ट्रेनिंग वगैरह होगी हम स्टार्टअप सेल में। नॉलेज भी होनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी हेल्थ कार्ड अभी दे रहा है आपको। इंटर्नशिप हमारे यहाँ अवेलेबल है, PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर है, ESOPs इक्विटी शेयरिंग प्रोपोजिशन है। अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं हमारे यहाँ, अगर आप कंपनी को अपना समझ के टाइम दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उससे यू विल गेट पार्टनरशिप इन आवर कंपनी। एक स्टार्टअप फंक्शनिंग ट्रेनिंग, अगर आप आ रहे हैं तो यू विल गेट टू नो कि हाउ डज ए स्टार्टअप वर्क। एंड वी आर ऑल्सो starting ordinate program where we will be onboarding students from college and transforming them into ordinate। और आप कॉलेज में रहते हुए अच्छा खासा कमा सकते हैं, खुद का ही नहीं किसी और का भी बुकिंग करके। इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर के स्टार्टअप सेल और हमारी एक सब्सिडरी है पेरेंट कंपनी की भव ग्रुप मिलकर के स्टार्टअप कम्युनिटी बना रहे हैं। अगर किसी के पास भी स्टार्टअप आइडिया है या स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, you can connect us, we will connect you with mentors, advisors, stakeholders, and we will give you curated trainings from professionals or even founders of other startup or eminent startup or eminent companies. We will be linking you with resources, whether it's funding related or resources related or connecting with the right team and networking. And we are starting an incubation in joint collaboration with PC Pune, where we will be giving $2 lakh technical credits, where Twilio, Amazon, Microsoft Desk and other form of that services will be given to you for you to utilize them and maximize your company's growth. And that's it. Thank you. And we would like, thank you. उठाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उठाएं। और अगर आप खुद भी करना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप की जा रही हैं।
इसके बारे में परिमल से वी विल रिक्वेस्ट परिमल सर टू कम हियर एंड टेल फ्यू थिंग्स अबाउट अस एंड द कम्युनिटी विच वी विल बी बिल्डिंग. Thank you, healthcare team members, for providing such a nice talk on this bootstrap startup company and motivating students to start with the ideas and promote them to convert the ideas into startup company. So what are the challenges, what are the opportunities, and how you will come to the solution? All things will be provided by this team. Okay, they are for your help, and they are being connected with PC Purnia startup team, and we have selected 2 student members also. Who are the 2 student members? One Love Kumar is present here, and one more girl. Okay, so Sonam Kumari. So they will be guiding you to connect with them later. Okay, so if even a small idea you have to start a startup, okay, these are the 3-4 giants who will connect you with other collaborators, other resources, okay, and they will try to solve your problem also. Okay, so very thank you to all the teams. बहुत मेहनत करके इन्होंने जो मेहनत किए हैं अपने लेवल पर, वो बहुत ही काबिल तारीफ है ना. इतना लेवल मेहनत करने के लिए लोग NIT में भी के बच्चे हम देखे हुए हैं, हम IIT मद्रास के भी बच्चे देखे हैं. स्टार्टअप के पूरे इंक्यूबेशन का टीम है वहाँ पे है पूरा, लेकिन लोग उसमें उतरने के लिए डरते हैं, है ना. हमारे पास भी हम PhD कर रहे थे तो स्टार्टअप के लिए बहुत सब वहाँ पे था अपॉर्चुनिटी, बट हमें डर लगता था कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ घुसे. तो इन्होंने उस डर को ओवरकम करते हुए इस मुकाम पे अभी जहाँ है, इनके पास जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, कोलैबोरेशन किए हुए हैं IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी और बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट सबसे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है ना. तो इनके लिए आप लोग एक बार क्लैप कर दीजिए. आगे प्रिंसिपल को बुलाने की देख लीजिए. बहुत धन्यवाद. One more thing, our application is live now and we would be starting fully fledged after the end-sem examination, and whoever are interested to come and be a part of our team, we are ready to welcome you all. Thank you. किसी के पास कोई क्वेश्चन वगैरह है तो दे कैन आस्क अस. इन्हीं को कोई क्वेश्चन हो about the company or our startup, anything. Thank you, sir, for coming here. Now our principal sir will address you and motivate you regarding the startup company. ठीक है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट बोल लेता हूँ. हाँ, इसमें वॉलीबॉल टीम भी दिख रहा है. अरे भाई अभी बोले नहीं, तालीम दे रहे हैं, क्या मतलब है? ये देखिए, सबसे पहले इसे चैंपियन है. चैंपियन किस चीज़ में? खेलने कूदने में. इसी तरह से आप लोग को चैंपियन बनना है. कहाँ पे? बैठ जाओ. चैंपियन बनना है बाहर. जब आप निकलते हो तो चैंपियन बनने के लिए आपको फाइनेंशियल ये चाहिए, ऐड चाहिए. आपको जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, आजकल इज्जत किसको मिलता है? जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उतना इज्जत मिलता है. और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप नौकरी करोगे तो नहीं मिल पाएगा. एटलीस्ट नौकरी करोगे तो वो नहीं मिल पाएगा.
वो मिलेगा तब जब आप खुद ही अपने फाइनेंशियली खड़े हो रहे हो अपने पैरों पे और 10 आदमी को नौकरी दो, तभी वो इज्जत मिल सकती है। और वो इज्जत तब मिलेगी जब कुछ अपना आइडिया जनरेट कर करके कुछ स्टार्ट करोगे तब। मैंने क्यों कहा वॉलीबॉल टीम, क्योंकि उसने सभी को मोटिवेट कर करके अपने साथ लाया खेलने वाले को, और खेलने वाला का एक ऐसा टीम तैयार किया जो कि कभी हार नहीं मानने वाला। लास्ट मोमेंट तक ये लोग फाइट कर करके मैच को जीतने की कोशिश करता है। इसी तरह से आप लोगों को भी जब मैंने बुलाया है, आप ही का सीनियर है, आप ही का भाई है, ये कुछ स्टार्ट किया है जो कि अपने इंडिया लेवल पे इसका रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो इसको कहते हैं इज्जत पाना। हर जगह पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो क्यों नहीं आप स्टार्ट कर सकते? जब ये स्टार्ट कर सकता है, ये भी एक ऐसा ही जैसे आप है वैसे ही ये भी था, लेकिन उसने एक आइडिया जनरेट कर करके कुछ स्टार्ट किया। तो स्टार्टअप वही उसी को फिर स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया स्टार्टअप। एंड दिस इज व्हाटएवर यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिफोर यू, दैट इज ए स्टार्टअप। तो आपको स्टार्टअप से इसलिए मैं इन लोगों को बुलाया, और मैंने पहले मेरे पास आया था, मैंने उसको बोला कि जब तुमने स्टार्ट किया है तो क्यों नहीं अपने छोटे भाइयों को और इन लोगों को मोटिवेट करते हुए इसको ये बता करके। एक रिकॉग्निशन तो मिल चुका है, भले अभी फाइनेंशियली आज़ादी इसको बहुत अच्छा से नहीं मिल पाया है, लेकिन एक रिकॉग्निशन इसे मिल चुका है। अभी 3rd ईयर में हो ना, फाइनल ईयर में इसका एक ऑलरेडी रिकॉग्निशन मिल चुका है। एटलीस्ट बिहार में तो हर कोई इसको जानने लग गया है कि भाई कोई है। और स्टार्टअप सेल जो है अपने यहाँ स्टार्ट भी हो चुका है, जिसके की कोऑर्डिनेटर हमारे जो हैं प्रोफेसर इंचार्ज हैं परिमल जी हैं। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी टाइप की ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि सर हमारे पास एक आइडिया है, क्यों नहीं इसको धरातल पे उतारा जाए, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। ऐसे प्रोफेसर इंचार्ज आपके परिमल जी हैं, वो ऑफिशियली मैंने उनको बना रखा है, आप उनसे बात कीजिए। ये आगे बात कर करके आपको धरातल पे उतारने की कोशिश करें कि नहीं ये कंपनी अच्छा है, इससे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपके साथ 2-3 बच्चे भी और आपके साथ आपके दोस्त जुड़ सकते हैं। तो मैंने इसको हमेशा अप्रिशिएट, जब भी मेरे पास आया किसी भी चीज़ के लिए आया, मैंने अप्रिशिएट किया कि यस यू हैव डन वेरी गुड जॉब। मैं भी कोशिश किया था, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। मैं भी कोशिश किया था, मैं अपने लिए कोशिश नहीं किया था। मैं ये सोचा था कि कम से कम 15-20 बच्चे जो इधर उधर भटकते हैं, कम से कम उनके लिए कुछ स्टार्टिंग करने के लिए हो जाएगी। 15,000 रुपया महीना ही किसी को देंगे तो स्टार्टिंग में 15,000 रुपया बहुत होता है। एक प्लेटफॉर्म तो मिलता है काम करने का, मतलब सीखने का मौका तो मिलता है, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि बिहारी लोगों में एक बहुत गंदी आदत है, रिस्क लेने की कभी आदत ही नहीं होती। मैं भी ये सोच कर करके 5 लाख 6 लाख या 10 लाख रुपया मतलब इंटरेस्ट पे पैसा ले करके उसको लगा करके फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, 10 बच्चे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सोच करके अपने हाथ को वापस खींच लिया, जो कि नहीं करना था। अब तो मेरे पास एक पैरों में इनविजिबल और हाथ में इनविजिबल हथकड़ी और बीड़ी लगा हुआ है कि हम कुछ कर नहीं सकते, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग को मोटिवेट करने का जितना है आप आइए, कुछ आइडिया लेकर के उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि DSP और गवर्नमेंट का रूल होता है कि आप नौकरी करते हुए कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ फायदा हुआ इससे, समझ में आया, कुछ सीखने को मिला। तो उम्मीद करें कि तुम लोग कुछ, तुम्ही में से 4-5 स्टार्टअप हमारा कम से कम निकलेगा। देखो हमारी भी कुछ, अब जो कहो इसका स्वार्थ को, चाहे जो, अगर हम स्टार्टअप सेल खोले हैं तो उम्मीद करते हैं कि 4-5 तो कम से कम हमारे यहाँ से निकले स्टार्टअप। अब उसको स्वार्थ कर लो चाहे जो कर लो, क्या उम्मीद करें कुछ ऐसा? तो ठीक है, आइडिया जनरेट कर करके अपने परिमल सर से मिलोगे। परिमल सर हैं जो उसको अगर चाहेंगे तो हमसे डिस्कशन करें, या नहीं तो सीधे डायरेक्ट पटना ही डिस्कशन कर सकते हैं। पिछली बार सर आप ही बताए थे कि ये एरिया जो यहाँ का मखाना और केला का एरिया है, मखाना मक्का का भी है, मक्का का भी, ये 3 उसमें कैसे किया जा सकता है? केला का चिप्स है ना, मखाना को पैकिंग करके, क्योंकि यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, पैक किया हुआ दीजिए तो उससे 5 गुना ज़्यादा होता है चक्की हुआ। और एक चीज़ और है, केला का जो है आजकल साउथ में भी बहुत अच्छी खेती होती है, उससे कपड़ा तैयार कर रहा है, उसका रेशा निकाल कर करके उससे कपड़ा तैयार कर रहा है। वो तो आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारा केला की खेती बहुत होती है,
यहाँ तो पूर्णिया में मैंने नहीं देखा, लेकिन जब पूर्णिया से लौटा और उस एरिया में जाते हैं तो देखते पूरा ठेला देखते हैं। आप उसको भी कर सकते हैं। और आज के ज़माने में आप जान लीजिए कि पॉलीथीन का मार्केट खत्म होते जा रहा है। धीरे धीरे कोई बैग आएगा तो उसी टाइप का कोई बैग आएगा जो कि टिकाऊ भी हो और ख़राब हो जाए तो उसको फेंकने में कुछ गंदगी भी ना पाए, तो आप उसका भी कर सकते हैं। आइडिया बहुत है, ये आपको सोचना है कि हमें करना क्या है। 15,000 रुपया की नौकरी करनी है। मैं स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ, बहुत अच्छे हो तो 25,000 रुपया दिलवा पाऊँगा, अगर नहीं अच्छे हो तो 15,000 रुपया से ज़्यादा नौकरी का उम्मीद यहाँ से मत करें। मैं साफ साफ आप लोग को बता रहा हूँ, और वो भी इसलिए मैं बुला कर दिलवा रहा हूँ क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए। ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट होता है। तो गया में मैं था तो एक अमेजन में भी लड़का गया था, उसको 22 लाख के पैकेज पे गया था। तो है इक्का दुक्का, ऐसा नहीं है कि आप में से नहीं है डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको देता है पैसा। लेकिन जो एक जनरलाइज जो हमारे पास स्टफ है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। आजकल आप IIT NIT चले जाओ, वहाँ भी 50% लड़का बाहर हो जाते हैं, नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। बोलने का कुछ भी बोल ले, नहीं आ पाते, क्योंकि वो जो कंपनी जो आती है हम लोग यहाँ से लेकर के जाती है, वो NIT में जाकर करके नहीं कर पाते। हम लोग के यहाँ ज़्यादातर जो कंपनियाँ आ रही है वो क्या है, छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। इसको L&T ये सब कहाँ आएगी, हमारे यहाँ नहीं आ पाएगी। हमारा हमको तो अभी वो भी नहीं कर पाएगा कि, क्योंकि हमारा मतलब जो कुछ भी है पहचान नहीं है वैसा। तो L&T, टिस्को और ये सब जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं वो अभी नहीं आएगी। उसमें जाने के लिए आपको दूसरा रास्ता है जो आप एक्सपीरियंस ले करके उसके बाद वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या है कि आपको दोनों तरह का रास्ता खुला हुआ है, या तो दूसरे के अंदर में हमें काम करना है या खुद का हमें जनरेट करके दूसरे से काम करना है। क्योंकि हर आदमी मतलब सक्षम नहीं होता है कि हम जाकर करके स्टार्टअप या कोई कंपनी खोलें। तो 4-5 लड़का मिल करके तुम लोग एक एक को आइडिया जनरेट कर करके एक वर्कशॉप करवाओ। ठीक है, इन लोग को बताओ, अपना जनरेट करते थे आइडिया जनरेट करते थे, कुछ तो आइडिया आएगा, कुछ तो आएगा। जैसे स्टार्टअप सेल का एक बार आउट हुआ था ना यहाँ पर, जो पहला हुआ था उसमें भी 1-2 तो बहुत अच्छा ही आया। हाँ, वहाँ से और उसमें प्राइज भी मिला था, प्राइज भी मिला था इन लोग को, बच्चों को। तो एक वर्कशॉप करवाओ और 5-5 लड़के या ग्रुप बना करके सबको आइडिया जनरेट कर लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। इस टाइप का कुछ करो ताकि इन लोग के अंदर में भी कॉन्फिडेंस, अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण लोगों के चेहरे पे जो हमको दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। जब कुछ देखते हो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको जब खाना भरपेट खिला दिया जाता है तो कैसे एकदम मस्त हो जाता है, सो जाता है, चाहे जो कुछ भी है। लेकिन इतना देर लगता है, 1-1.5 घंटा से काम कर रहा है, लेकिन वो चीज़ हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे। जैसे जो होता है सेटिस्फैक्शन का लेवल, वो नहीं हम देख पा रहे। एक वर्कशॉप भी कराओ, एक वर्कशॉप भी कराओ ताकि कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप इन लोगों से बिल करके करवाइए। और तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो बताओ। किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हम अगर मान लिया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो पैसे हमें कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, ये सब चीज़ कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? ऐसा नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, तुम लोग अभी तक सोचा ही नहीं कुछ करने के लिए। आखिर जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, जब हम किसी चीज़ को बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं तो वही कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, देखो अभी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैंने समझ गया कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि क्या है। बैठ जाओ। एक तुम्हारा हायरार्की बना हुआ है, या कहो कि फ्लो चार्ट बना हुआ है। जैसे तुमने आइडिया जनरेट किया, आइडिया जनरेट करने के बाद आपको जो लोकल जो यहाँ पे गार्जियन है, गार्जियन मतलब जो यहाँ के ऑफिसर, उनसे आप मिलिए, उस आइडिया को ले जा कर करके
अब इनका क्या काम होता है कि उस आइडिया को लेकर करके एक प्रपोजल बनाना। वो प्रपोजल में क्या क्या चीज़ है, क्या सामान लगेगा, हमारा कितना समय लगेगा, सारा का सारा चीज़ आपको जो बनाना है, और उसमें ये मदद करेंगे आप। और उसको लेने के बाद में ये जो है, जो स्टेट लेवल पे जो स्टार्टअप पॉलिसी का जो ये करता है, वहाँ पे उसको भेजेंगे। उसको भेजने के बाद में उसमें जो पैसा वगैरह है उसका वहाँ भी ये करता है। बाद की बात है, मैं उससे पहले की बात है। देखिए, अभी बहुत अच्छा आइडिया मेरे को भी नहीं था, अभी ये बता रहा है कि जो कुछ भी आप स्टार्ट करेंगे तो पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। पूरा रिसर्च करके एक प्रोडक्ट आपको तैयार कीजिए। अगर वो प्रोडक्ट अगर जैसा सब बोल रहे थे केला का रेशा अगर वो हमारा आवाज़ क्लियर नहीं जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड है, जैसे सब बोल रहे थे केला का रेशा करे या किसी भी फॉर्म का प्रोडक्ट बेस्ड है, तो वो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट तैयार करिए। अगर आपको बस एक आइडिया स्टेज में, तो कॉलेज के साथ मिल करके रेलिवेंट जो भी स्किल चाहिए या जो भी मदद चाहिए उसके बेसिस पे प्रोडक्ट तैयार कीजिए। टेक बेस्ड है तो जो भी आपका अगर ऐप बेस्ड है, सर्विसेज बेस्ड है, तो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होगा, उसकी बेसिस पे जो है एक कंपनी फॉर्म किया जाएगा। कंपनी ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे का सोर्सेज बना हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ बिहार बहुत तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं। सीट पर 25 लाख मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टार्टअप इंडिया से 10 लाख मिलता है आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। लेकिन आपको पहले क्यूरेट करना है, कुछ तो आप दिखाओगे ना, बस हमें मैं बोल देगा मैं मार्च पहुंचा दूंगा, तो मार्च पहुंचने के लिए मेरे एक रॉकेट तो बनाना होगा, एक वाइबल प्रोटोटाइप टाइप का आप चीज़ बनाइए। तो अगर आपके पास आइडिया है, सबके साथ मिलिए, कॉलेज बहुत सपोर्ट कर रहा है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, मिल करके बनाते हैं। फिर उसके बाद जो भी है आगे प्रोसीड किया जाएगा, जहाँ जहाँ भेजने का हो सकता है। बहुत सारे इवेंट होते हैं, RIC इवेंट, IT गुवाहाटी होता है, हम लोग भी वहाँ पर अपना प्रोटोटाइप भेजे हुए हैं। बहुत सारे इवेंट है। IT बॉम्बे में हम लोग ने यूरेका में पार्टिसिपेट किया था, ईसेल का भी पार्टिसिपेट, आप लोग स्टार्टअप सेल का पार्टिसिपेट बनिए। एक पूसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ फर्स्ट रैंक पे आए एंटरप्रेन्योरशिप सेल में। हमारे बिहार से, दुनिया से, अपने कॉलेज से गया ही नहीं, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है ना। इसे में एक स्टार्टअप कम्युनिटी हम लोग बनाते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है अपना नंबर इनको दे दीजिए, एक ग्रुप बनाते हैं। और शर्माना नहीं है, एक आइडिया आप आइडिया इनसे पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, सर भी रहेंगे, दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा। उसको फिर क्यूरेट करके एक ऑपरेशन बनाते हैं। और अगर बोलिए, सर अगर कोई स्टार्टअप करता है तो कॉलेज की तरफ से इनिशियल फंडिंग की व्यवस्था है? क्या चीज़ का? कॉलेज की तरफ से इनिशियल फंडिंग की व्यवस्था? नहीं, कॉलेज की तरफ से नहीं। जब गवर्नमेंट ऑफ बिहार है जो कि फंडिंग करने के लिए तैयार है, तो कॉलेज क्यों? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से वो आता है, मिलेगा आपको। हम लोग हेल्प करेंगे यहाँ से, लेकिन ये जो आपको जो कॉलेज से मदद करने की बात, ये फंडिंग आप कीजिए, तो हमारे पास अपने वो सब चीज़ के लिए फंडिंग नहीं है। हम ही दूसरे के ऊपर भरोसे पे रहते हैं कि दूसरा हमको दे कुछ पैसा। डिपार्टमेंट बना अरे हुआ है। तुम जो हमको 2500 रुपया दे रहा है ना, उसमें तुम क्या उम्मीद करता है ये बताओ पहले। साल का 2500 रुपया देता है, उसी से पूरा कॉलेज हमको चलाना होता है। कौन सा फंड है? आगे आओ, आगे आओ, आगे अभी हमारे पास वो हम समझ गए तो क्या बोला था। एक्चुअली इसका कहना है क्या कि जो कॉलेज कुछ पैसे देती है, कॉलेज है जो कि कुछ पैसे देती है इसमें, तो कॉलेज वो एक्चुअली ये बोल रहा है कॉलेज नहीं देती है। तुम्हें मैं क्लियरली बता दूँ, ये हर कॉलेज में जो स्टार्टअप सेल है, वो स्टार्टअप सेल के तरफ से मिलता है, और वो स्टार्टअप सेल है जो कि कॉलेज की तरफ से नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ बिहार है जो हमारे यहाँ एक शाखा खोल दिया, ब्रांच खोल दिया उसका। यही तुम रफ शब्दों में यही समझ लो कि एक ब्रांच खोल दिया। एक तरह समझ लो कि स्टेट बैंक जैसे हर जगह ब्रांच खोलता है, कॉलेज में खोलता है, वैसे ही एक वो ब्रांच स्टार्टअप सेल खोल दिया है यहाँ पे। उसका कंट्रोलिंग जो है हमारे यहाँ से नहीं होगा, उसका कंट्रोलिंग बिहार सरकार के द्वारा, और उसका एक आदमी भी यहाँ पे रहेगा हमेशा।
जो हम एक आदमी यहाँ पे रखेंगे उसका सैलरी भी वहीं से मिलेगा, स्टार्टअप सेल वहीं से बिहार से ही आएगा, पटना से उसका सैलरी आएगा, हम नहीं देने जा रहे। तो यहाँ पे क्या है कि हम आपको जब यहाँ से कर करके भेजते हैं, मतलब फॉरवर्ड करते हैं आपको, इसका मतलब है कि कुछ अच्छा है तभी भेज रहे हैं। और उसको वहाँ पे भी स्टार्टअप सेल जो बिहार का जो ऑफिस है, इंडस्ट्री वाला जो है ऑफिस, वहाँ भी उसको ये करके अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो आपको पैसा आपको डायरेक्ट तो नहीं मिल करके, तो हो सकता है स्टार्टअप सेल से डायरेक्ट मिल जाए, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा वो पैसा। और वो पैसा रिटर्न करना है, ऐसा नहीं है 0% इंटरेस्ट है उसका, बस इतना ही है, 10 साल के अंदर में उसको पैसा जमा करना है। अच्छा, अब देख लो एक नया चीज और हमको यहाँ आने के बाद पता चला कि बिहार सरकार है जो 10 लाख रुपया देती है, वो 10 साल के लिए देती है 0% इंटरेस्ट के ऊपर। भारत सरकार जो है देती है 25 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल, आपको रिफंड नहीं करेंगे। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? 25 lakhs, लेकिन वही कुछ करके दिखाना पड़ेगा तभी वो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करो, 25 lakhs 10 lakhs कम नहीं होता है। अब लगता है थोड़ा देर आ गया, करने लग गया है, ये उसको करना है। और कुछ सोर्स आ जाएगा, सिर्फ आइडिया आप लोग जनरेट करो, आइडिया जनरेट कर करके आगे आप लोग बढ़ो, और अपने लिए नहीं सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो, मेरा यही कहना है। क्वालिटी का रहा तो आपको मिल जाएगा, नहीं रहा तो बहुत लेवल है उसका, यहाँ से आपको मिलेगा, बाहर से भी मिल जाएगा। देखो आप ये मन पे मत सोचना, देखो एक चीज, 1 मिनट, आप लोग जो सोच रहे हो कि पहला स्टेप बढ़ाएंगे उसमें सक्सेस कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ, 25 साल इसके पीछे मैंने मेहनत किया है, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 25 years उसका ये है, और ये उम्मीद कर करके मत चलो कि हम पहला स्टेप बढ़ाए तो हम सक्सेस ही कर जाएंगे। अगर कर गए तो बहुत अच्छा, और नहीं किए तो उसके लिए हार भी नहीं मानना। मैं अक्सर हाँ बहुत बच्चे हैं जो फेल होकर करके मेरे पास आते हैं कि सर मैं फेल कर दिया। मैं बोला इंजीनियरिंग एजुकेशन का असली मायना तभी समझ पाओगे जब फेल करोगे। बिना फेल किए हुए इंजीनियरिंग का मतलब पता नहीं चलता है। हाँ हाँ बेटा बताइए। देखिए इसका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आपने आइडिया, see the things whatever you are asking, no, this is little bit different. Whatever he is saying, I have to make a prototype, which is not possible from here. Then we will go outside. हमें बाहर भी जाकर करके करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उस चीज़ को बनाना है, हमें बना करके दिखाना है कि ये चीज़ हमको बनाना है, ये वायबल है। आप जा कर करके बाहर में कहीं पे भी बनवा सकते हैं उस चीज़ को। जैसे झोला है, मान लो बैग ही हमको बनाना है, बैग बनाने के लिए ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें मैं वो बैग बना दूंगा। नो, मैं कहीं से भी उसको बना कर करके वहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा कि मुझे ऐसा बैग बनाना है और इसके लिए मुझे उससे हट करके काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो वो बना रहा है उसी को बनाएंगे और उसी टाइप से बनाएंगे तो हम कहेंगे स्टार्टअप है। दिस इज नॉट ए स्टार्टअप। किस तरह का प्रोडक्ट का बात कर रहे हो? किस तरह का प्रोडक्ट का बात कर रहे हो? किसी भी टाइप का प्रोडक्ट की बातें कर रहा है। अगर जैसा सर बोल रहे हैं उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीका से बनता है, क्या फैब्रिक है। उसके लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमारी है, आप वहाँ चाहिए। नॉलेज हर कोई देगा, आप पहुँचे तो सही। अगर टेक्निकल चाहिए, मैकेनिकल से रिलेटेड चाहिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, आप उनके पास जाइए।
आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो या कुछ प्रोडक्ट होना चाह रहे हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट चाहिए। आपको यहाँ पे जितना संभव है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाए और उसके लिए वो जिम्मेवार है, परिमल जी हैं जो कि जिम्मेवार हैं उस चीज़ के लिए कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए जो हमसे संभव है। जैसे अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अभी बैठ जाओ तुम बैठ। मुझे एक जरूरत पड़ गई, आप देख रहे हो चारों तरफ फील्ड में घास ही घास है, तो मुझे जरूरत पड़ गया एक ग्रास कटर मशीन का। आपके यहाँ ऑलरेडी एक ग्रास कटर मशीन है जो रखे रखे खराब हो गया और वो बन भी नहीं सकता और उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए। तो हुआ कि सर कैसे ये होगा, 2 आदमी से तो साफ करना इतना संभव नहीं है क्योंकि बरसात का दिन है, एक साइड से काटते जाएंगे दूसरे साइड से बड़ा होता जाएगा, वो कभी भी साफ नहीं हो सकता। तो मैं अपने आधार पे मैकेनिकल का HOD को मैंने बोला कि आप इस टाइप से प्रोटोटाइप तैयार करके एक मोटर लगाइए और नीचे में 3 है जो कि चाकू यहीं से बना करके उसमें सेट कर दीजिए, वो चलेगा तो अपने आप कटेगा। तो अभी वो चीज़ है जो बनाने के लिए मैंने बता दिया और उसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया। तो ये है जो कि आपको करना पड़ेगा, स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा और जो कुछ भी है आपको बनाना है तो पहले तो आप कोई भी किसी भी टाइप का मॉडल बना लीजिए। मॉडल बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ बदलाव किया जा सकता है। ऐसे नहीं होगा बैठे बैठे आप चाहोगे कि आइडिया जनरेट कर गया और पूरा धरातल पे आ गया, नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, फेल भी होना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी हो सकता है, ऐसे बैठे बैठे कभी कुछ नहीं। काम नहीं हुआ छोड़ दें। जो प्रोमिनेंट स्टार्टअप सेल है, जो भी प्रोमिनेंट स्टार्टअप सेल अभी है वो भी उनके पास भी रिसोर्सेज पहले नहीं था, पहले स्टूडेंट अपने बेसिस पे ही कर रहे थे, कॉलेज सपोर्ट कर रहा था। अभी उनके पास खुद का रिसोर्सेज, अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है कॉलेज खुद ही दे रहा है। तो आप अभी अपना जो स्टार्टअप सेल है कॉलेज का नेसेंट स्टेज उसको उस लेवल तक पहुँचाने के लिए स्टूडेंट को ही आगे बढ़ना है। जो स्टार्टअप सेल है, जो प्रोमिनेंट स्टार्टअप सेल IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी जो भी है, वो जब नेसेंट स्टेज पे थे उनको भी कॉलेज रिसोर्सेज नहीं दिया था, वो अपने बेसिस पे ही और कॉलेज का इंफॉर्मेशन नॉलेज के बेसिस पे जो है बनाया गया था। अभी सारी रिसोर्सेज उनके स्टार्टअप सेल में, हमारा कॉलेज का स्टार्टअप सेल अभी नेसेंट स्टेज पे है। आपको नॉलेज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लिंक चाहिए, नेटवर्क चाहिए, मेंटोरिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी आपको दी जाएगी। कहाँ से आपको रिसोर्स मिलेगा वो भी आपको लिंक किया जाएगा, लेकिन आपको पहले आगे बढ़ना होगा। उस लेवल पे अपना स्टार्टअप सेल पहुंचेगा तो सारी चीज़ें यहीं से हो जाएगी। लेकिन आप शुरुआत में ही चाहोगे कि कॉलेज ही बना के दे दे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वो भी बना देंगे, लेकिन आप आगे तो बढ़ो, आगे बढ़िएगा, उसके बाद हम आगे उसके लिए मशीन जो भी चाहिए वो हम मंगवाएंगे फिर और देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि नहीं, कहीं से एक स्टार्टअप निकलता है तो राज्य का भी बहुत नाम होता है, कॉलेज का तो नाम होगा ही, राज्य का भी नाम होता है, स्टेट का, कि वहाँ से एक इतने स्टार्टअप निकल करके आ रहे हैं। तो आप एक बार स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कर करके अगर वो यूजफुल प्रोडक्ट होगा तो निश्चित तौर पे सरकार हमें मदद करेगी। और आपको वहाँ भी जाने का, अभी तो यहाँ पे भी आपका पूर्णिया में भी उसका सेल निकला हुआ है, जो कमिश्नर है तो 2 बार हमारे यहाँ आ चुके हैं कि सर आप स्टार्ट तो करवाइए। कमिश्नर साहब, हाँ उद्योग विभाग से आए थे, क्या नाम था वो नाम की, कई बार हमको फोन करते थे, बोले सर कुछ काम कर रहे हैं। चलो, अगर इसने कुछ आप लोगों के लिए करने के लिए इतनी इच्छा जताई थी, मैंने इसको कहा कि नहीं आकर करके बच्चों के बीच में अगर ये फायदेमंद हुआ है आप लोगों के लिए, कम से कम 10% उम्मीद करते हैं कि जो बोला है उसका 10 जितने बच्चे हैं उसमें से 10% है जो कि कोशिश करेगा करने का। करो, हम लोग भी साथ में हैं। परिमल साहब तो ऐसे अपने आप में मतलब इस चीज़ के लिए हैं, लेकिन अगर इनसे ऊपर की बातें होगी तो मैं भी आपके साथ हूँ। मैं इन लोगों को हमेशा कहा है कि तुम करो, आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, गिरने नहीं दूंगा। चलो आप लोग इधर ही से हम लोग आओ पीछे चले जाते हैं ना, पीछे चले जाते हैं ताकि सभी बच्चे आए, हम लोग इधर आए। सर बोल रहे थे हम लोग लेट से आए, कुछ गाइड कर देते ना, सारा हम लोग का कुछ है कुछ भी पिए 2-4
किस चीज़ का? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से